So let's Okay. start. तो एसएपी का इंट्रोडक्शन तो देने का मेरे को कोई जरूरत नहीं है. आई थिंक एवरीबडी अवेयर अबाउट एसएपी. So let's start from the lecture 1. So today what we are going to cover, we are going to cover about enterprise structure. तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हम क्या सिखाते हैं. एसएपी की जब हम बात करते हैं तो एसएपी में हमारी दो स्क्रीन होती है, टू स्क्रीन. ये जो आपको बैकग्राउंड में स्क्रीन दिख रही है इसको बोलते हैं एसएपी इजी एक्सेस, जिसको हम होम स्क्रीन भी कह देते हैं. यूजुअली जो होम स्क्रीन होती है वो एंड यूजर के लिए होती है. तो जैसे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा आपको, लिखा आ रहा है एसएपी इजी एक्सेस. करेक्ट. तो ये जो मेरी स्क्रीन है, आपको दिख रहा है मेरा नोटपैड और सॉफ्टवेयर. हेलो. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो इसको हम बोलते हैं होम स्क्रीन, जिसको हम एंड यूजर वाली स्क्रीन भी कह देते हैं. इस स्क्रीन का नाम होता है एसएपी इजी एक्सेस. जो दूसरी स्क्रीन होती है एसएपी की सेकंड स्क्रीन, जिसे हम बोलते हैं आईएमजी. आईएमजी बोले तो इम्प्लीमेंटेशन गाइड. So in this screen, who are working SAP consultant. So how we can reach this screen, IMG screen? We have a two options. Either options we are having. First option, menu path, and second option is T code. So in a SAP, usually we are using SPRO. SPRO means SAP Project Reference Object. This is the common T code we are using. T code is known as a shortcut as well. So मेनू पाथ, या तो हम मेनू पाथ से जाएंगे. वी हैव ए टू चॉइस, आइदर वी कैन यूज मेनू पाथ और टी कोड. टी कोड, which T code we can use SPRO. So here we have a option, we can just write down the T code SPRO, then click on a enter button. We can directly reach reference IMG and IMG screen, display IMG. You can see in the head on the top, right? This screen known as a implementation screen. If you want to come back on a home screen, either you can use back button or you can use /n. Then you can reach out home screen. Home screen known as a SAP Easy Access screen. Now menu path. SPRO, reference IMG, and this is implementation screen. Now for first topic, creation of company. So company क्या होता है? Anybody can explain me what is company? हेलो. क्या हुआ? Two or more Overall, members data. join together to make a company. हम्म. अरे, no, no, no. In a SAP, there is not two things. Company in a SAP, the company known as a group of industry. For example, of Anurag, right? So Anurag group of industry. Anurag group of industry, it's a separate entity. It's having multiple company. For example, of Anurag Textile, Anurag Steel, Anurag
Anurag Motor, for example. So these three company works under the Anurag Group of Industry. In SAP, Anurag Group of Industry is known as a company. Under this company, we have multiple companies, right? So Anurag Textile, Anurag Steel, Anurag Motor. But it is not mandatory कि अनुराग टेक्सटाइल का अगर टर्नओवर 200 करोड़ है, it is not mandatory we need to implement SAP in Anurag Textile. Anurag Steel, the company is having more than 500 crore turnover. So here we have a option to implement SAP. तो अनुराग मोटर का क्या है, उसमें कितना हो सकता है, मे बी 1000 करोड़ हो. So we have a choice. Either we can implement SAP in Anurag Steel or Anurag Motor. अनुराग मोटर, फॉर एग्जाम्पल हम अनुराग मोटर का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसमें एसएपी लगाते हैं, तो इसको एसएपी में हम कंपनी कोड बोलते हैं. बात समझ में आई या ऊपर से गई? हेलो सर, मतलब अनुराग टेक्सटाइल, स्टील और मोटर कंपनी कोड है ना? यस 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 यस. बट जरूरी नहीं कि अनुराग टेक्सटाइल में हम एसएपी लगाएंगे. तो अगर हम अनुराग स्टील में लगा रहे हैं, अनुराग मोटर में लगा रहे हैं, तो वो कंपनी कोड से डिफाइन किया जाएगा. हम जब एसएपी में काम कर रहे हैं तो स्लाइटली कंफ्यूजन रहता है, व्हाट इज कंपनी, व्हाट इज कंपनी कोड. कंपनी इट्स ए पेरेंट कंपनी, कंपनी कोड वेयर वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट एसएपी. अगर अनुराग की 4 कंपनियां, तो 4 में एसएपी नहीं लगा हुआ, हर एक कंपनी में एसएपी नहीं लगता. जैसे टाटा ग्रुप है, तो टाटा की तो 50 या 100 कंपनियां हैं, तो हर एक कंपनी में एसएपी नहीं है. बात समझ में आ रही है? एसएपी वहां पर लगता है जिन कंपनियों का टर्नओवर मोर देन 500 करोड़ है या 1000 करोड़ से अधिक है. हेलो, आर यू गेटिंग मी और नॉट? आई डोंट नो. Yes, yes. So first thing we supposed to know what is company and company code. अनुराग, ये रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा अब ग्रुप में ही. और फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स अगर इंस्टीट्यूट हमें देता है या नहीं देता है, तो मैं एक ड्राइव पर आपको परमिशन दे दूंगा, आप उसमें से व्यू कर सकते हैं अपनी. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. परेशान ना हो, रिकॉर्डिंग इज नॉट ए बिग चैलेंज. मैं आपको पर्सनली भी दे दूंगा और एक ड्राइव पर सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग सेव करता जाऊंगा. तो उसका लिंक मैं आप लोगों को परमिशन दे दूंगा, तो आप व्यू कर सकते हैं उस फोल्डर को कभी भी. ठीक है? Okay. Okay. क्लियर है? Sir. तो ये समझ में आया आपको कंपनी कोड में डिफरेंस? हेलो, ये सॉफ्टवेयर तो चल नहीं रहा है यार. हेलो, आप तो नहीं यूज कर रहे जिसने मुझे दिया है ये एक्सेस? हेलो, नहीं सर, अभी तो बंद ही है मेरा. क्योंकि जब यूज करता है तो वो वहां से एग्जिट कर देता है हमें. नहीं, ये शायद सर्वर इशू है कुछ. तो हम पहले क्या क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं. इंटरफेस स्ट्रक्चर में आए, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी. तो इसका यूजर मैनुअल मैं आपको दे दूंगा, हाउ टू क्रिएट द कंपनी और ऑल दिस स्टफ. सो क्या टैब है, इन सब की इंफॉर्मेशन. न्यू एंट्री करते हैं. सो अब यहां पर जैसे कि मैंने आपको इस नोटपैड में समझाया था कि कंपनी और कंपनी कोड में क्या डिफरेंस है, राइट? तो कंपनी, अब हम यहां पर कोड मेंशन करेंगे और उस कंपनी का नाम मेंशन करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पर कोड देना क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई कोड इज मैंडेटरी?
आप जब स्कूल में थे, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, स्कूल में क्या होता है कि रोल नंबर होता है एंड द नेम होता है. सो रोल नंबर इट्स यूनिक, बट नाम कैन बी डुप्लीकेट, नेम कैन बी डुप्लीकेट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अनुराग दो हो सकते हैं, एक अनुराग का रोल नंबर 5 है, दूसरे अनुराग का रोल नंबर 6 और मे बी 6 और मे बी 7 हो सकता है. am I right or wrong? सो यहां पर ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि हमें कोई न्यूमेरिकल नंबर देना है, अल्फा न्यूमेरिकल भी आप दे सकते हैं. तो जैसे आज हमारा बैच है मार्च में, तो मैं मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से MR-1 दे देता हूं. तो हेलो, क्या हुआ? हाँ जी बोलिए, बोल रहा था कुछ. सो मैंने यहां पर दिया अनुराग